Hello students, so today we will discuss about the second type of cash book, that is your double column cash book. As in the last class we have solved the practical questions of simple cash book or single column cash book. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं single column cash book में क्या होता था, cash book with single column. Here as from the name it has been suggested double column cash book. Double column cash book means there would be two columns in the cash book. One column would be considered as cash column and another column would be considered as bank column. That means a cash book with two columns, that is your cash and bank column, both on the receipt side. As you can see from the board, on the date particular LF, as I had maintained two column, एक cash और bank का column है, okay, that is on the debit side, as well as date particular LF cash and bank column has been there on the credit side. So this is the format of double column cash book. So that is known as your what? Double column cash book. Okay. Now here one thing you have to consider, the transaction which would be occurred in cash. जो भी transaction cash से related होगा, that will be recorded on either on the receipt side or on the payment side on the cash column. And whatever the transaction relating with the check would be there, that will be recorded on the bank column of the cash book. Okay. Now next term from the board you can see contra entry. अब यहाँ पे एक टर्म देखना पड़ेगा हमको, कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? द टर्म कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है? मीन्स टू साइडेड. सो द टर्म कॉन्ट्रा का मतलब होता है टू साइडेड. दैट मीन्स when the entries is made in both the side मतलब both the debit side as well as your credit side of the cash and bank column of the cash book simultaneously. Okay, then such entry would be considered as contra entry. ठीक है, तो कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है? टू साइडेड. अभी तक हम जितना भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे, या तो ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड कर रहे थे आइदर ऑन द रिसिप्ट साइड और डेबिट साइड, और दैट हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड. ये कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होता है जो ट्रांजेक्शन्स, जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड बोथ द साइड में करेंगे, एक साथ में एक ही डेट में हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे बोथ ऑन द रिसिप्ट साइड एज वेल एज ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश एंड बैंक कॉलम. ठीक है, एंड इट इज सोन बाय राइटिंग सी इन द एलएफ कॉलम ऑफ द कैश बुक. जो भी हमारा एलएफ कॉलम है ना कैश बुक में, उसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा? सी. सी का मतलब क्या होगा? कॉन्ट्रा एंट्री. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कॉन्ट्रा एंट्री होगा. Okay, so first condition, when cash is paid or deposited into bank, okay, so there would be contra entry. Suppose cash paid into bank is how much? 10,000. जब हम कैश जमा करते हैं बैंक में, so it will affect both the column, cash column as well as bank column. ठीक है, so first transactions के लिए suppose हम कैश जमा कर रहे हैं बैंक में, कितना? 10,000. So bank column would be increased. So here what we have to write? We have to write your to cash. ओके, टू कैश लिखे हम कहाँ लिखेंगे? बैंक कॉलम में. कितना? 10,000. एंड इन एलएफ कॉलम व्हाट वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट द सी इन द एलएफ कॉलम. और एक तरफ मेरा बैंक बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मेरा क्या कम होगा? कैश कम होगा. ओके, सो हियर व्हाट वी हैव टू राइट ऑन द सेम डेट? बाय बैंक. ओके, हमको क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैंक एंड अमाउंट वुड बी रिटन इन द कैश कॉलम. कैश कॉलम इज हाउ मच? योर 10,000. और एलएफ में क्या लिखेंगे? सी. That is the first transaction. That means transaction has been recorded both on the receipt side as well as on the payment side. जब कभी भी हम कैश जमा करेंगे बैंक में, तो एक तरफ हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, तो बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या लिखेंगे? टू कैश. ओके, और एक तरफ मेरा कैश कॉलम कम हो जाएगा, तो कैश को कम करने के लिए हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक एंड द अमाउंट विल बी रिटन इन द कैश कॉलम. ठीक है. सेकंड कंडीशन, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं for office use, how much is the amount? Rupees 5,000. okay, so second transaction, अब हम बैंक से पैसा निकाले, तो हमारा कैश क्या हो जाएगा? कैश इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैंक लिख के अमाउंट विल बी रिटन इन द कैश कॉलम. हाउ मच विल बी द अमाउंट? अमाउंट इज 5,000. एंड in LF column what we have to write? We have to write C, that represents the contra entry. Similarly it will be recorded on the credit side of the cash book. हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या कम होना चाहिए? बैंक कम होना चाहिए. बैंक को कम करने के लिए हम क्या लिखेंगे? बाय कैश एंड अमाउंट विल रिटन इन द बैंक कॉलम. हाउ मच इज द अमाउंट? अमाउंट इज 5,000. और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सी. सी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री. ओके,
तो अगर हम कैश जमा करेंगे बैंक में तो हमारा कॉन्ट्रा एंट्री होगा, तो कैश जब हम बैंक से निकालेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा फॉर ऑफिस यूज। और अगर यहाँ पे फॉर पर्सनल यूज हो जाता है तो दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि पर्सनल यूज एज यू नो पर्सनल यूज वुड बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। तो उसको हम क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स लिख के बैंक कॉलम में अमाउंट लिख देंगे कितना, 5000। Okay, so this is how we are required to record the contra entries. Okay, so let us solve the question as from the board. Okay, so we can see the question from the board. Prepare the double column cash book. Here it has been given we are required to prepare double column cash book. That means a cash book with 2 columns. That means we must have the 2 columns in the cash book. As from the format you can see double column cash book, that is your 2 column is your cash and bank column. Okay, so date, particular, LF, your cash column is there, again followed by the bank column. Okay, then again date, particular, LF, cash, bank. Okay, this side is known as your debit side and this side is known as your credit side. Okay, so let us solve the question. First bid 2019 March 1st, cash in hand given how much, rupees 12,250, and cash at bank how much, rupees 72,400. Okay, so first one is your opening balance. So opening balance will be shown on the your debit side, that is your March 1st. What we have to write down, opening balance to balance brought down. Okay, BD का मतलब क्या होता है, brought down. कैश कितना है हमारा, कैश इज योर 12,750 and bank is how much, cash at bank is how much, 72,400. Okay, so this is the transaction for March 1st. Next, March 4th, received from Asha cash rupees 1200 and check for rupees 3,200, allowed discount 400. ओके, सो हियर हमको पैसा मिल रहा है, किससे मिल रहा है, आशा से. दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड. डेबिट साइड इज नोन एज योर रिसिप्ट साइड एंड क्रेडिट साइड इज नोन एज योर पेमेंट साइड. पैसा आ रहा है March 4th, सो ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड March 4th. क्या लिखेंगे हम, पैसा किससे मिल रहा है, आशा से मिल रहा है, सो टू आशा. ओके, हाउ मच कैश वी आर रिसीविंग, कैश वी आर रिसीविंग 1200 and how much check is there, check is rupees 3200. check का मतलब अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, अमाउंट will be recorded in the bank column. okay, as well as discount has been given 400. तो discount जो है, discount will not be recorded in the cash book. Why? Because we are preparing only the cash book with cash and bank column. okay, so we have to ignore the amount of discount. okay, next bit is your March 7. paid salary to staff by check, how much, 25,600. so that will be recorded on the payment side. payment side में हम record करेंगे, क्या लिखेंगे, March 7th. okay, so how much is the salary we are paying, your salary paid is how much, 25,600, and that has been paid with the help of your what, check. what we have to write, we have to write here by salary. ओके, और चेक कितना का दे रहे हैं हम लोग, चेक हैज बीन गिवन 25,600. सो चेक इज योर 25,600. ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज योर March 9. विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हाउ मच, 21,900. इसका मतलब क्या हुआ, हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं कहां से, बैंक से, फॉर ऑफिस यूज. सो दिस वुड बी, एज आई हैव सेड यू अर्लियर, दिस वुड बी कंसीडर्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, द एंट्री विल रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड, योर receipt side as well as on the payment side, that is affecting both the cash column as well as your bank column. ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन दो केसेस के लिए अभी हम बताएं, दो केसेस के लिए कॉन्ट्रा एंट्री होता है. एक पैसा बैंक से निकालेंगे ऑफिस यूज के लिए तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा, एंड कैश पेड इनटू बैंक तो उसके लिए भी क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री. ओके, सो फॉर दिस ट्रांजेक्शन March 9 विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कितना, 21,900. तो हम लोग बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कैश इंक्रीज होगा. सो March 9, सिंस वी हैव टू इंक्रीज अवर कैश कॉलम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक. टू बैंक लिख के अमाउंट वेयर टू बी रिटर्न, अमाउंट टू बी रिटर्न इन द कैश कॉलम, एंड हाउ मच इज द अमाउंट, 21,900.
ठीक है। एंड इन LF कॉलम वी हैव टू राइट C। C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, अगेन दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में हम क्या लिखेंगे? March 9। ओके, हम पैसा कहां से निकाल रहे हैं? बैंक से। तो हमारा कौन सा कॉलम कम होगा? बैंक का कॉलम कम हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक कॉलम को कम करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय कैश। ओके, बाय कैश in LF column what we have to see, right? C, and amount would be how much? In bank column 21,900. ठीक है, that means in this case transactions has been recorded both on the cash column as well as bank column. Okay, so this transaction would be considered as contra entry and it has been represented by the letter C, which would be written in the LF column on both the sides of the cash book. Okay, next March 12, interest paid by bank on bank balance rupees 1200. So next transaction we will see your March 12, interest paid by bank on bank balance. How much is the interest? Rupees 1200. That means यहाँ पे बैंक हमको पैसा दे रहा है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है कितना? 1200 रुपया। तो हमको मेरे को पैसा मिल रहा है, so that will be recorded on the receipt side. Okay, so that would be March 12. पैसा आ रहा है हमारे पास में, किसका पैसा आ रहा है? बैंक का, इंटरेस्ट के नाम पे। So to interest and amount would be written on bank column. बैंक कॉलम कितना हो गया? 1200. Okay, so this is the transaction for March 12. Next transaction is of March 16. क्या दिया हुआ है? Purchased furniture in cash. How much is the amount? 16,500. तो हम फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं कैश में 16,500। ठीक है, तो हमारा कैश जा रहा है, that will be recorded on the payment side. ठीक है, March 16. So March 16. What we have to write? We have to write buy furniture. हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर परचेस कर रहे हैं। ओके, एंड हाउ मच इज द अमाउंट? अमाउंट इज योर 16,500. दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम। कितना? 16,500. ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन March 21, पेड मोहन एंड कंपनी बाय चेक। कितना? 10,900. डिस्काउंट रिसीव्ड इज हाउ मच? रुपीज 100. हम लोग मोहन एंड कंपनी को चेक दे रहे हैं, दैट मीन्स ऑब्वियसली अमाउंट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। और यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है हमको 100 रुपीज, सो डिस्काउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द डबल कॉलम कैश बुक सिंस वी आर मेंटेनिंग ओनली कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, तो March 21 का ट्रांजेक्शन आ जाएगा March 21। ठीक है, हम लोग मोहन एंड कंपनी को चेक दे रहे हैं कितना का? 10,900। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मोहन एंड कंपनी। हाउ मच चेक वी आर पेइंग? 10,900. सिंस द अमाउंट इज रिटन इन चेक, सो वी हैव टू राइट द अमाउंट इन बैंक कॉलम। कितना लिखेंगे? 10,900. ओके, नेक्स्ट बिट March 24 क्या है? प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। कितना है? 11,600. तो प्रोप्राइटर विड्रू कर रहा है पर्सनल यूज के लिए। एज वी हैव रेड, any amount which has been withdrawn by proprietor that should be treated as drawings. So business से कैश जा रहा है, so that will be recorded on the payment side. ठीक है, so March 24th. So entry would be recorded in March 24th. So what we have to write? By drawings. So we have to write by drawings. And how much we have withdrawn the amount? How much? Your 11,600. So 11,600 would be recorded in the cash column. ठीक है, नेक्स्ट बिट March 29, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। कितना? 14,800. हम लोग मनोज को गुड्स बेचे, पैसा आ रहा है, दैट विल रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड. ओके, दैट इज योर March 29. सो March 29, so entry would be your to sales account. And how much cash we have received? 14,800 is the cash which we have received. Okay, last but not the least is your March 31st. क्या है ट्रांजेक्शन? डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक. हाउ मच? 21,200. इसका मतलब क्या है? हम लोग पैसा जमा किए किसमें? बैंक में. सो इट वुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट? कॉन्ट्रा एंट्री. एक तरफ हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ हमारा कैश कॉलम कम हो जाएगा. ठीक है, सो लास्ट ट्रांजेक्शन इज योर March 31st. पैसा कहां जा रहा है? बैंक में. सो वी हैव टू इंक्रीज द बैंक कॉलम. बैंक कॉलम इंक्रीज होगा तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू कैश.
लिख के बैंक में अमाउंट लिखेंगे कितना 21,200 एंड LF कॉलम में क्या लिखना पड़ेगा C का मतलब क्या होता है कॉन्ट्रा एंट्री। अगेन दिस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड दैट इज मार्च 21st। हमको क्या काम करना है अमाउंट विल बी रिटन इन द कैश कॉलम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय बैंक, ओके, एंड अमाउंट विल बी रिटन इन द कैश कॉलम, तो कैश कॉलम होने से 21,200 and here we have to write C, that is the contra entry, okay. So in this way we are required to solve the question. अब क्या करेंगे balancing figure we have to calculate, okay. So we have to get the total of cash. So cash का total हम लोग करेंगे. So receipt side first we have to do the total of cash. So receipt side अगर करते हैं total तो हमारा कितना आएगा this one if we get the total would be 50,650, ठीक है। सो कैश का टोटल कितना है 50,650। नाउ वी हैव टू गेट द टोटल ऑफ द योर पेमेंट साइड, ठीक है, और नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर को हम क्या लिखेंगे लास्ट डेट में मार्च 31st, व्हाट वी हैव टू राइट बाय बैलेंस CD का मतलब क्या होता है कैरी डाउन, ठीक है। इसका टोटल करके 50,650 माइनस टोटल ऑफ दिस क्रेडिट अमाउंट, ओके, एंड हाउ मच विल बी द डिफरेंस फिगर वुड बी 1350, ओके, एंड टोटल अमाउंट वुड बी हाउ मच 50,650, ओके। सो कैश बैलेंस वी हैव कैलकुलेटेड, सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट द बैंक बैलेंस, ठीक है। तो पहले बैंक का टोटल करेंगे, तो बैंक का टोटल अगर करते हैं हम हाउ मच विल वी गेट द टोटल ऑफ 98,000, okay. Now from this 98,000 we have to deduct the amount from the credit side of the bank column. इसका टोटल करके 98,000 minus total of the credit side, okay. So how much will be the balancing figure would be 39,600, okay, and we have to write the total amount how much 98,000 and we have to give the two line, okay. So March 31st is the entry, next date would be your April 1st. So April 1st what we have to write April 1st बाय बैलेंस कैरी डाउन को क्या लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के हम आंसर लिख देंगे। कैश का कितना है 1350 और बैंक का कितना है 39,600, okay. Whatever the balancing figure would be there, this would be written on the debit side, okay. So this is how we are required to prepare the cash book, okay. That's all for today. Thank you.